Namaskar, I'm Ashok Vyas, and when I'm smiling because life means smile. Is the suggestion that comes to us from yoga practitioners, and they say that the ability to smile in adverse circumstances means yoga. So, how you connect with yourself is very important, but sometimes that connection, if it fails to happen in the rhythm in which it is desired to take place, then some people feel that life is meaningless, and that leads to a state where some of them wants to work towards early exit from human form. And the word that is horrifying is suicide. Suicide Prevention Day was observed on 9th September. And what is the significance of this day? And what are the measures that are universally applicable when we talk about preventing suicide? One of the best sentences for this sanctuary is the only way to master multitasking is do one task at a time. So when we are trying to multitask, actually what is happening is we are adding to our stress. So that is how the millennials and the X generation and the Y generation, and not even they, even the older one, they have been adding to their stress, trying to multitask, trying to एक की जगह सब साधने की कोशिश. So तो ऐसा कहते हैं कि एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए, पर हम इसके एक्सेप्शन बहुत सारे देखते हैं. But let us begin from the beginning. How we work with our mind is very important. But we will walk backward. So why the need to observe Suicide Prevention Day, which in the month of September, on 9th September, was observed? Talk to me as a psycho-spiritual counselor, how significant you think this idea of focusing collective attention on this problem. very significant and at the same time very tragic, because when we talk about suicide prevention, it shows that actually we have failed to address the mental well-being. Because I always put emphasis that we don't need to talk about suicide prevention. We should talk about prevention of not living with mental well-being. It's like, why to talk about people dying of hunger if we can take care of hunger? So we have to focus on mental well-being. Why only to talk about those who go to the extreme miseries of life? The most extreme misery of life is when you think of ending the life. Why not to talk about all those miseries where people live, जिंदा हैं पर जिंदगी में जिंदगी बाकी नहीं है? That is something we need to address, I guess, more. तो मुझे दो पंक्तियां याद आई, और शायद शैलेश जो हुए हैं फिल्मों में गीतकार, शैलेंद्र उनकी है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ले जमीन पर. तो जिंदगी की जीत पे यकीन रहता नहीं है कई बार. दैट इज अ प्रॉब्लम. और जो आप पहले कह रहे थे कि व्हाई वेट टिल द एंड, बिगिनिंग जब नॉर्मल है तब इस पर ध्यान दें. तो होता है ऐसा नितिन जी कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो लोग सोचते हैं ये तो बातें फालतू की है, बिकॉज आई नो इट ऑल. एवरीबडी थिंक्स दैट ही इज इंटेलिजेंट, एंड ऑफ कोर्स दे आर, but they also feel that they are under control of how their mind is operating. I think that illusion sometimes, or that proves to be elusive sometimes. तो आप इसके बारे में थोड़ा और बताएं. और जब सब कुछ नॉर्मल है तो पेरेंट्स भी नहीं सोचेंगे कि उसको मेंटल वेलबींग के बारे में भी बात करें, और स्कूल सिलेबस में भी कहीं आपको ऐसा एक्सक्लूसिव मेंटल वेलबींग पर फोकस होता दिखता नहीं है. That's very tragic, because one of the most extraordinary things that happens in human mind is कि जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, उनके डिप्रेशन या किसी एक्सट्रीम
मेंटल ट्रॉमा में जाने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है. Because those who have lesser in life, or those who have a lesser IQ is not a word I am very fond of, but just to understand कि जो proven IQ जिनका कम आप कहते हैं, usually they take life far more like the way it comes. उनको छोटी मोटी हार की आदत पहले से होती है, so they know how to handle failure. And people, you know, when you are so used to success, sometimes even a single shock or a single block by the failure it is too much to handle. तो Let me, कोई yeah, sorry कोई to है ही interrupt. नहीं. Yeah, yeah. जी. I just thought we'll go with few points, starting with the need to be the best. And जब हम प्रेरित करने के हिसाब से या किसी को एनकरेज करने के हिसाब से, तो ठीक है भाई, यू ब्रिंग आउट द बेस्ट, बट एवरी टाइम यू वांट बी नंबर वन एक्चुअली. तो इफ यू हैव attached yourself to that expected result where you are number one, और आप बार बार ऐसा होता है कि आप 3 आ गए, 7 आ गए, 12 आ गए, जो भी है, फेल हो गए समझिए, तो देन यू फील कि यार आई हैव नो राइट टू लिव. ऐसी मेंटल स्टेट में जब आ जाते हैं लोग बाग, तो उस के लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? पेरेंट्स को, सोसाइटी को, इंडिविजुअल परसेप्शन को? ये सबका जो कॉम्बिनेशन, इसके बारे में कुछ बताएं. Rat race को, all of a sudden life has become one kind of a graph where you have to top, you have to be above others. दूसरों से आगे होना जिंदगी का नाम नहीं था. हमने सोच गलत बना दी, और वही सोच अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दी. अभी इंडिया में 2 बहुत बड़े एग्जाम्स खत्म हुए हैं. यू वोंट बिलीव, मेरे पास 7 केसेस हैं इस समय. एंड व्हाई? एंड दीज आर नॉट स्टूडेंट्स जो अच्छा नहीं कर रहे हैं लाइफ में. दीज आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ. ये टॉपर्स हैं, अपने अपने स्कूल्स के टॉपर्स हैं, टॉप 15, टॉप 20 में आने वाले लोग हैं. बट जस्ट बिकॉज वो आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए, दे आर गोइंग इनटू डिप्रेशन कि हम तो वर्थलेस हो गए. जस्ट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर एग्जाम में एक पर्टिकुलर रैंक नहीं ला पाए, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे. हम अब इतनी एक्सपेक्टेशंस थी सबकी हमसे. सो वो यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट कह के हमने क्या किया है, हमने एक प्रेशर का बहुत बड़ा पहाड़ उनके ऊपर रख दिया है. एंड मोर देन दैट, it is happening because everybody seems to be taking life like a race. It has to be an evolution, it has to be a search for my optimum. वो बेस्ट मेरा था, मुझे मेरे ऑप्टिमम को रीच करना था. ये अचानक हमने क्या कर लिया, हमने इस रेस को x वर्सेस y रेस बना डाला. I think even the I don't I'm I may be asked to talk. I may be a dreamer because जो मैं बात कर रहा हूँ वो ड्रीम्स की बात है. बट मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम भी रिवैम्प होना चाहिए. ये जो हम अभी कॉम्पिटिटिवनेस लेके आ रहे हैं, इस कॉम्पिटिटिवनेस का भी तरीका बदलना चाहिए. Something like a lot of revolution is happening in India as far as education system is concerned, but I still feel हमको किसी एक ऐसे सिस्टम पे काम करने की जरूरत है जहां आप किसी दूसरे से compete ही नहीं कर रहे हो, आप अपने से compete कर रहे हो. आपका रिजल्ट में जो रैंकिंग आए वो इस बात से आए कि आपने पहले के मुकाबले कितना बेटर किया है. इस बार आपको दूसरों के रिजल्ट से अलग आपका रिजल्ट बताया जाए, और फिर आपको बताया जाए that whatever you are doing, you have to be best at your ability in that. तो अभी हम जिस एंगल से बात कर रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक लग रहा है, लेकिन जनरली स्पीकिंग ये नोशन रहता है कि हेल्दी कंपटीशन इज गुड टू सस्टेन मोमेंटम और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए. अब ये हेल्दी वर्ड जब कंपटीशन के साथ जुड़ जाता है, तो इसका क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? यही होता है जो मैं कह रहा हूँ कि हेल्दी कंपटीशन वही है जब मैं खुद से कॉम्पीट कर रहा हूँ. जब मैं खुद को कहूँ that अशोक जी अगर इतनी अच्छी एक प्रोग्राम को
एंकर कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वो अशोक जी की एबिलिटी है। मुझे अशोक जी से कॉम्पीट नहीं करना है, मुझे मेरी बेस्ट एबिलिटी को निकाल के लाना है, उसे निखारना है और उसमें निरंतर कुछ ना कुछ ऐड करते रहना है। दैट इज हेल्दी कॉम्पिटिशन। अच्छा, ये जो आपने कहा कि मेरी जो बेस्ट है, एंड अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अशोक, अनित और नितिन, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीवन। तो ये वाली जो पहचान है कि मेरी ये बेस्ट है, उसके लिए जो एक फ्रीडम थिंकिंग पैटर्न की होनी चाहिए, वो भी कई बार होती नहीं, बिकॉज वी फील दैट द सोसाइटी, पेरेंट्स, वो सब एक इम्पोज कर रहे होते हैं कि बेटा तुझे यही बनना है, और उससे शायद एक इनर एडजस्टमेंट में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। एंड इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट योरसेल्फ, तो आप किसी और की जिंदगी जीने के लिए आप यू आर काइंड ऑफ फोर्स्ड टू लिव समवन एल्स, जो कि आप नहीं है। टॉक टू मी अबाउट दिस स्पेस। यहाँ पे कई लोग होंगे, तो ये भी एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। तो सक्सेसफुल है लेकिन हैप्पी नहीं है। Actually, we have to redefine success. That's why I have a line on my website that if you are not blissfully successful, you're not successful. So the first word is bliss, then success. So the first and the foremost success to get is bliss. Unfortunately, right now it's about succeeding at any cost. So the competition is all about, did I succeed? And that is why if you are not succeeding, it is unacceptable. And when it is not acceptable, it is when people start taking the extreme steps. वो छोटे extreme steps हो सकते हैं कि आप मिजरी में जिंदगी जीते रहें, वो इससे और बड़े हो सकते हैं कि कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाए, उससे और बड़ा हो सकता है that people go into depression, या फिर लास्ट एक्सट्रीम डिनाइल है, जब आप जिंदगी को ही डिनाई कर देता है। But as a matter of fact, we have to redefine success, and at least the coming generation, for them we have to set few different standards. एक एग्जाम हैप्पीनेस का होना चाहिए, और सबसे पहले मुझे लगता है ये इम्तिहान माँ बाप को देना चाहिए, वो कितने खुश हैं। फिर एक एग्जाम हैप्पीनेस का स्कूल में होना चाहिए कि टीचर कितना खुश है। एक एग्जाम ब्यूरोक्रेसी का होना चाहिए कि वो कितनी खुश है। then I think we will have a happiness quotient like charging bodies चारों तरफ। बच्चा घर से हैप्पी पेरेंट्स से हैप्पी टीचर्स के पास जाए, और फिर वो हैप्पीनेस का भी एग्जाम दे, हैप्पी बच्चा बन के निकले। मैं बहुत हैप्पी हो गया ये आइडिया आपको सुन के, एकदम मुझे लगता है नया नया सा आइडिया है। पर ऐसा होता है कि कोई भी अच्छा आइडिया आपको लगता है, फिर आप उसकी चीर फाड़ करने लगे होते अंदर ही अंदर, कि हैप्पीनेस जो है वो कंपोजिट रिजल्ट है कई चीजों का, जिसमें से हैव्स एंड हैव नॉट्स वाला क्वेश्चन भी आता है। पर उसमें से अभी मैं सिर्फ रोल मॉडल की तरफ चलता हूँ। आपको लगता है कि हमारी जो लीडरशिप है या हमारा जो सिस्टम है, समटाइम्स वी फील दैट इट हैज फेल्ड अस। आई मीन, ये हर एक कंट्री में होगा, मैं किसी कंट्री स्पेसिफिक की बात कर नहीं रहा हूँ। और मुझे लगता है हम मानते तो हैं कि भाई सब तरफ फेयर होना चाहिए, लेवल प्लेइंग ग्राउंड फील्ड हो, ये सब बातें हम करते हैं। बट माई ऑब्जर्वेशन टेल्स मी, नितिन जी, एंड यू मे डिसएग्री, दैट world is not always fair and justice is not available for everyone all the time. हम लोग कोशिश करते रहते हैं, so there are different permutation combination की वे कौन से लेवल पर किसको जिंदगी में सब कुछ फेयर हुआ उसके साथ। so ये मैंने इतना ज्यादा ब्रॉड बात इसलिए की है नितिन जी, बिकॉज दिस becomes a cause of lot of inner conflicts, contradictions, dissatisfaction, and then you react to news in some way that adds to your disgruntlement, disappointment,
etc etc. Talk to me about this space. Who said being disgruntled or have being dissatisfied is wrong? मैंने कह दिया अभी तो. Remaining is wrong. मैं दुखी हूं, वो मेरा अधिकार है, पर मैं दुखी हूं ये एक आनी और जानी घटना होनी चाहिए. When I make it my signature, that becomes a problem. It is मेरे रसों में से एक रस है दुखी होना. डिसअपॉइंटमेंट भी एक रस है, पर वो आना और जाना चाहिए, वो अटकना नहीं चाहिए जीवन में. और यही है, बहुत प्यारे अभी उनका देहांत भी हुआ, उनकी बहुत प्यारी पंक्तियां हैं राहत साहब की कि हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें. क्या बात. तो हादसे तो होंगे जिंदगी में. यू सेड सो ब्यूटिफुली, लाइफ विल नेवर बी फेयर बिकॉज हमारी गणित गलत है. लाइफ की फेयरनेस को समझने के लिए हमें उस बड़े कैनवस को देखने की जरूरत है जो हम नहीं देख पाते. इसीलिए हमें लाइफ अनफेयर और फेयर लगती है. हमें इसीलिए एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना होता है कि हाँ, दिस इज लाइक एक पहाड़ चढ़ रहे हैं तो एक बार नीचे की तरफ जाएंगे, फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी. When life gives you, you never ask why me, but when life takes away, we all ask why me, and then we say it is unfair. हमें दोनों के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. इसीलिए मैंने कहा कि हमें एक एग्जाम हैप्पीनेस का भी देना शुरू करना पड़ेगा. बच्चे को शुरू से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा कि नहीं. अच्छा, जो हैप्पीनेस एग्जाम के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसकी तैयारी क्या हो, उसमें सवाल क्या होंगे? उसकी तैयारी ये हो कि पिता बच्चे को बताए कि ऑफिस में उसका प्रमोशन जो ड्यू था वो नहीं हुआ, एंड हाउ ब्यूटीफुली पिता उसको हैंडल कर रहा है. फिर टीचर उसको बताए कि किस तरीके से उसको प्रॉब्लम आती है पर वो कितनी खूबसूरती से हैंडल करता है. अब पिता और टीचर दोनों बच्चे को प्रेरित करें, और ऐसा करने में पिता और टीचर भी प्रेरित होते रहें कि हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें. जिंदगी तो इम्तिहान लेगी, उस इम्तिहान में पास होने की कला लेकर हम सब पैदा हुए हैं. दिस इज सो ब्यूटीफुल. हमें भूलने की नेमत बख्शी है उसने. हमें डिस्ट्रैक्ट होने की, यही डिस्ट्रैक्शन जो हमारे प्रोग्रेस को रोकते हैं, यही डिस्ट्रैक्शंस हमें किसी एक डिस्पेयर में फंसे रहने से भी तो बचाते हैं. हमारे पास सारी स्किल्स हैं टू सर्वाइव, टू बी हैप्पी. अनफॉर्चुनेटली जब हम स्किल्स, जो हम इनेट स्किल्स हैं, उन्हें अनलर्न करना शुरू कर देते हैं, और जो अननेचुरल पैटर्न्स हैं उन्हें लर्न करना शुरू कर देते हैं. दैट इज आवर अनडूइंग. आपने जैसे बहुत खूबसूरती से बताया कि जो फेवरेबल बात नहीं हुई है उसको हमने खुशी खुशी एक्सेप्ट कैसे किया, वो आने वाली पीढ़ी के साथ शेयर करें. जो होता है कि हम उसको छुपा जाते हैं और जब तक सफल नहीं होने तब तक बताते भी नहीं कि नहीं बैड न्यूज है. तो आपके हिसाब से बैड और गुड नहीं है, बैड और गुड उसको बनाता है हमारा रिएक्शन. एक और शब्द आपने पहले लिया था कि ब्लिसफुल है कि नहीं. तो ब्लिस का मतलब क्या है? हमें जो बहुत लोगों के जीवन में इसका अर्थ पता ही नहीं होता हमको. हम ऐसे भी लिख देते हैं कई बार कि आई एम ब्लिसफुल, हमको मालूम नहीं. आप क्या कहते हैं, हाउ वुड यू डिफाइन बीइंग ब्लिसफुल? बेवजह मुस्कुरा सकें तो आप ब्लिसफुल हैं. बेवजह. जब आप वजह के साथ मुस्कुराएं तो आप प्लेजर ने आपको हैप्पी किया है, और जब आप बेवजह मुस्कुरा सके तो आप ब्लिसफुल हैं. जब सुबह की ठंडी हवा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके, जब सनसेट और सनराइज देखकर आप आनंदित हो सके, जब आप वैसे ही बस हैं, बैठे हैं, इसी से आनंद ले सके, then you are in bliss. तो मैं ऐसे And we are born with it. मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ. आप ये बातचीत सुनते हुए अगर मुस्कुरा लेते हैं तो यू आर ब्लिसफुल. Absolutely. तो पर हमारा पर्पस यही है कि आपका जीवन जो है वो ब्लिसफुल हो. बेसिकली ब्लिसफुली सक्सेसफुल होना, एक मीनिंगफुलनेस जो लाइफ की है
उसके साथ कनेक्शन हमारा बनाए रखता है। अब थोड़ा सा समय हमारे पास है नितिन जी, तो आप मुझे जो सुसाइड प्रिवेंशन डे को लेते हुए अगर आप टॉप 5 टिप्स अपनी लाइफ को अच्छे से अपनाने के बारे में शेयर करें, और मुझे पता है आप इस तरह से लाइन कर करके 1 2 3 ऐसे पॉइंट बताया करते हैं, सो योर टॉप 5 टिप्स टू एम्ब्रेस लाइफ इन इट्स टोटलिटी, एंड वो जो सुसाइड शब्द कहीं कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे। थैंक यू। सो नंबर 1, सबसे पहले अपने रिलेशनशिप्स को रिपेयर करना सीखिए, because I have never seen someone thinking of suicide who has family, friends and professional people on a good note. तो अगर फैमिली, फ्रेंड्स और प्रोफेशनल पीपल जो हैं वो गुड नोट पे होंगे, सो पीपल विल नेवर एवर थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड और टेकिंग एनी एक्सट्रीम स्टेप। तो सबसे पहले तो अपने रिलेशंस को रिपेयर करना सीखना होगा। रिलेशंस को रिपेयर करना सीखने में एक और कला आ जाती है। रिलेशनशिप जिसे अच्छी बनानी आती है, आप ध्यान से देखिएगा, उसे अपने जो डिफिकल्ट मोमेंट्स हैं उनको अच्छे से हैंडल करना आता है। जिसे डिफिकल्ट मोमेंट अच्छे से हैंडल नहीं करना आता, वो रिलेशनशिप भी अच्छे से नहीं बना पाएगा। नंबर 2, देखिए आप इमोशन की एक्सट्रीम्स में तो नहीं जीते हैं, क्योंकि जो लोग इमोशंस की एक्सट्रीम में जीते हैं वो अक्सर इम्पल्सिव हो जाते हैं। तो अपने इमोशंस की एक्सट्रीम्स को रिकग्नाइज कीजिए और देखिए आपको इमोशंस को बैलेंस करना आता हो। नंबर 3, अपनी डिसीजन मेकिंग पे हमेशा काम करते रहिए। अपने आप को अच्छा एनालिटिकल डिसीजन मेकर बनाइए। नंबर 4, लाइफ के बड़े कैनवस को देखिए एंड डेफिनेशन ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ उसे बार बार देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ की फिलॉसफी को अपडेट करते रहिए, क्योंकि अगर आप लाइफ की फिलॉसफी को अपडेट करते रहेंगे, अच्छा पढ़ते रहेंगे, तो विश्वास माने आपकी लाइफ में बैड मोमेंट्स आ सकते हैं, आप डिस्पेयर में कुछ मोमेंट के लिए जा सकते हैं, पर आप बाउंस बैक करना सीखेंगे और आप बहुत अच्छे से बाउंस बैक करते रहेंगे लगातार। बहुत ही सुंदर बताया आपने, और मैं आपके साथ इस बात को रिकलेक्ट करूं जो आपने कहा कि रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दिया जाए, इमोशनल अपहीवल जैसा नहीं हो, उसके अलावा आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ी अच्छी हो, और अंतिम 2 बातों की तरफ हम जाएं, उसमें पर्पस जो लाइफ का है उसको अपडेट करने वाली फाइनल बात थी। और जो चौथी बात नितिन जी ने चौथी कही थी, चौथी पर्पस ऑफ लाइफ और लास्ट फिलॉसफी, जिंदगी का फलसफा अपडेट करते रहिए लगातार। अच्छा, मैं चौथी को लास्ट में वापस इसलिए लाया हूँ क्योंकि जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसके बारे में थोड़ा और बताएं कि अ, लोग, मतलब हम सभी ऐसा मान रहे होते हैं, पैसा कमाया और अब अमेरिका में बैठे हैं तो कहें भी इफ आई एम एबल टू पे माय बिल्स, तो दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ऐसा हमने कहीं कहीं ऐसी कंडीशनिंग अपने माइंड की कर दी है कि भाई मॉर्गेज देना है या गाड़ी का किस्त चुकाना है, या इससे आगे भी मैं कुछ हूँ, ये जो है वो हमारे अंदर एंटर हो नहीं पा रहा होता है। तो इसलिए फिर लिमिटेशन से लिमिटेशन की तरफ चले जाते हैं। तो पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में आप कुछ और बताएं। मैं चाहता हूं कि हम इसे क्वेश्चन मार्क की तरह छोड़ें और किसी के कहे सुने को माने ही नहीं, बस अपने आप से पूछते जरूर रहें कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। जैसे मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं निशेष जार जी, मथुरा से हैं, उनका एक बहुत प्यारा शेर है कि जब से खुद में खुदा को पा गया हूँ, खुदा की कसम मैं घबरा गया हूँ। हाय हाय हाय। तो हर किसी का अपना अलग अलग पर्पस ऑफ लाइफ हो सकता है किसी का पर्पस ऑफ लाइफ टू फाइंड लव हो, किसी का पर्पस लाइफ कुछ और हो। और एक और बहुत प्यारा शेर मुझे याद आ रहा है कि हो सकता है मैं एक आध शब्द इधर उधर कर दूं कि हर उम्र में शौक होते हैं जुदा, पहले गुड़िया फिर माशूक और फिर खुदा। तो पर्पस ऑफ लाइफ भी चेंज होते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है।
पर कम से कम ये विचार तो रहे, ये थॉट तो रहे that I should think of my purpose of life. जिंदगी ऐसे ना कट जाए कि बस बस मैं जिए जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों जिए जा रहा हूँ, पर जिए जा रहा क्या बात है। तो निधि जी, आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी उन पंक्तियों को याद करता हूँ जो ये बात लेकर आती हैं कि देखना ऐसा ना हो हूँ। वाह, बस छूट जाए जिंदगी। क्या बात है। देखना ऐसा ना हो बस छूट जाए जिंदगी, इस तरह जियो कि हर एक पल तुम्हें अपना लगे। वाह वाह वाह, खूबसूरत। तो ये अपनेपन की बात को लेते हुए आपका बहुत सारा धन्यवाद है। सुसाइड प्रिवेंशन डे 9 सितंबर को जो मनाया गया, उसको केंद्र में रखते हुए हमने जीवन को अ, उसकी संपूर्णता के साथ अपनाने के बारे में साइको स्पिरिचुअल काउंसिल डॉक्टर नितिन सारस्वत जी से बात की। आपका धन्यवाद है बहुत बहुत नितिन जी, बहुत मंगल कामनाएं आपके लिए। और थैंक आप हमारे साथ जुड़े, शुभ कामनाओं के साथ आपका आभार। अशोक व्यास को।